right? But the simple one is going to be the friction, because when it comes to friction, there are many examples which we can discuss. Lightning, the when comb is rubbed with the hair, it will attract small pieces of paper. So many examples. That we have discussed last lecture. And when it comes to electric charge, I told you electric charge, it is the property of matter by virtue of which it will produce electric field or experience electric field. Then it will be called as electric charge. And there are two types of electric charge. One is positive charge, another is negative charge. So if I say body is positively charged, it means it has got more number of protons compared to electrons. And if it has more number of protons compared to electrons, ultimately the net charge will become positive, right? Because we consider the charge on proton is positive, and it is plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And the second type will be negative charge. The body is said to be negatively charged if it has got more number of electrons compared to protons. And the charge on electron is considered to be negative. Again, it is going to be minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So I mean the magnitude of charge on proton and the magnitude of charge on electron, it is going to be the same, right? And next we have discussed the definition of coulomb, right? By means of current, we have defined 1 coulomb. That is, if 1 ampere of current flows for 1 second in any given area of cross section of the conductor, then the charge flowing through the conductor is said to be 1 coulomb. So you have completed up to this one, right? And when it comes to coulomb, it is going to be the SI unit for charge in MKS system. I repeat, coulomb, it is going to be, when it comes to MKS system, SI system, right? In MKS system, the SI unit for charge, it is going to be coulomb, right? And when it comes to CGS system, suppose आप CGS system consider करते हो, then we have got unit ESU. इसका मतलब electrostatic unit of charge, right? It is electrostatic unit of charge. Sir, can we produce electric charge less than 1.6 into 10 raised to minus 19? No, we cannot produce charge less than, because the basic charge is going to be 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, right? Means Yes. आप इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन को आप स्प्लिट करके तो डिवाइड नहीं कर सकते ना बच्चा. कैन यू स्प्लिट इलेक्ट्रॉन इनटू टू No. पार्ट्स? नहीं ना, पॉसिबल No. नहीं है ना. तो अल्टीमेटली चार्ज तो उतना ही रहेगा. वो पढ़ेंगे हम लोग. एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उधर मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में. मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है बॉडी के ऊपर, ठीक है? अभी मैं यूनिट का बात कर रहा हूँ. Yes. हम लोग कुलुम को यूज करने वाले आगे जाके. बट आपको याद रहना चाहिए कि पहला हम लोग ESU और EMU यूज करते थे. इधर EMU का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट? एंड ये दो यूनिट पहला यूज करते थे, एक ESU और एक EMU. व्हेन इट कम्स टू रिलेशन, 1 कूलम इज 3 into 10 raised to 9 ESU. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये रिलेशन है कूलम और ESU के बीच में. एंड 1 कूलम इज 1/10 EMU. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन ESU एंड EMU. आपको आंसर तो कूलम में आएगा, देन आपको ESU में या EMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ESU एंड EMU ये CGS यूनिट है. तो अभी इसको नोट डाउन कर लो सब लोग, राइट? MKS सिस्टम में कूलम और ESU और EMU CGS में होगा. सर यस सर हमको कैसे मालूम है कि ये ESU और EMU कन्वर्ट करना है? उधर दिया रहेगा कि हम लोग को खुद पहचानने का? नहीं बच्चा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियरली देगा कि आपको कन्वर्ट करना है. सपोज नहीं देगा तो आपको आंसर तो कूलम में लेना है. ओके बच्चा, हम लोग अभी MKS सिस्टम यूज करते हैं तो वी एक्सपेक्ट आंसर कूलम में आना चाहिए. बट अभी जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द आंसर इन ESU एंड EMU, देन डेफिनेटली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. इफ इट इज नॉट आस्क्ड,
देन डेफिनेटली आप नहीं करेंगे। तो आप प्रिकॉशन का तरफ से सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं, राइट। क्वेश्चन आया तो आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट। तो सब लोग नोट डाउन कर लो इसको। डन सर। ओके डन सर। फाइन। सो इफ इट इज डन, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सर वेट, डन सर। ओके डन सर। फाइन। तो आई होप सबका हो गया है। यस सर, यस So we will move towards the properties of electric charge. So when it comes to properties, तो हम लोग उसको 5 टाइप में या पार्ट में डिवाइड किया है। आई थिंक आपको 2 प्रॉपर्टी तो पता ही होगा जो सिंपल है, 3 हो सकता है यू में आपको पता भी रहेगा या नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है। बट 2 प्रॉपर्टी तो मेरे को पता है कि आपको पक्का पता है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सो बिफोर गेटिंग इनटू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो आई विल कंसीडर ए ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड कंसीडर करेंगे, तो देयर इज ए ग्लास रॉड, राइट, and there will be a silk cloth, and I told you last time, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो है इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चला गया, आई मीन द इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स इधर चला गया, तो दिस विल हैव नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड दिस विल हैव पॉजिटिव चार्ज। मतलब ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। एंड ऑन द अदर हैंड आई विल कंसीडर ए एबोनाइट रॉड, राइट, एंड इधर हम लोग फर यूज करेंगे, सो यू गॉट अ फर। तो इधर रिवर्स होता है, रिवर्स इन द सेंस द फर विल गिव द इलेक्ट्रॉन, तो फर इलेक्ट्रॉन्स देगा एबोनाइट रॉड को। सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो सो यू आर गोइंग टू हैव द चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड विल बिकम नेगेटिव एंड ऑफ कोर्स द फर विल हैव पॉजिटिव चार्ज। ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है और पता भी है हम लोग को। अभी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने क्या किया, ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को साथ में लेके आया, आई मीन ही ब्रॉट नियर दिस टू रॉड्स। सो ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को साथ में लेके गया, तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ये दोनों अट्रैक्ट होता है, ये दोनों अट्रैक्ट होता है। देन वो सोचा कि ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसने क्या किया, ग्लास रॉड 2 लिया और दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब किया। देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ग्लास रॉड जो 2 है आपस में लेके आया तो वो रिपल होता है। या एबोनाइट रॉड 2 लिया और फर का साथ रब किया, देन एबोनाइट रॉड्स जो है वो रिपल करता है आपस में। मतलब ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड अट्रैक्ट हो रहा है, ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड रिपल होता है, एबोनाइट रॉड एंड एबोनाइट रॉड रिपल होता है। तो उसको लगा कि डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज अवेलेबल, क्योंकि ग्लास रॉड में अल्टीमेटली दोनों सेम चार्ज रहेगा, इसके लिए वो रिपल हो रहे हैं, और ग्लास रॉड एबोनाइट रॉड में अलग अलग चार्जेस के लिए वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसने कंक्लूजन दिया, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसने बोला कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, तो अल्टीमेटली ये अनलाइक चार्जेस जो है आपस में अट्रैक्ट करता है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अनलाइक चार्जेस, unlike charges
attract each other. तो ऑब्वियसली आपको ये पहले से पता ही होगा. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड रिपल होता है, एबोनाइट रॉड एंड एबोनाइट रॉड रिपल होता है. इसका मतलब लाइक चार्जेस जो है रिपल होता है. सो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी. आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता ही है. Yes. Yes. हाँ, ये दोनों कंप्लीट कर लो, दोनों लिख लो पॉइंट्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सेकेंड प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो. Done. Done, sir. Done, sir. Fine. Done. तो सबने लिखा होगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेकंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. मेरा नाम बता के बताना. बच्चा आपका माइक म्यूट कर लो, आवाज एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है. सो द सेकंड प्रॉपर्टी, not second one, this is third property. So when it comes to third property, charges are additive in nature. तो इनका नेचर जो है वो एडिटिव रहेगा. So charges are additive in nature. So I will explain ये additive क्या होता है. So when it comes to additive, तो आपको जब भी एक बॉडी को ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, नेट चार्ज, तो आपको उसका अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा, राइट. सो द नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू algebraic sum of charges, right, on different parts of ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, वो सब चलेगा. सो रिपीट, द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, सपोज इधर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर चार्ज है Q प्लस है, एंड इधर चार्ज है -2Q, एंड इधर चार्ज है 3Q है, राइट. एंड इधर जो चार्ज है इट इज गोइंग टू बी 5Q है, एंड एट सेंटर देयर इज वन चार्ज, लेट इट बी -Q. तो अभी इसका नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा. सो व्हेन इट कम्स टू अलजेब्रिक एडिशन, प्लस से तो प्लस लेना है, माइनस से तो माइनस लेना है, याद रखना. सो द टोटल चार्ज विल बी, सो Q total, it will be I will take 1 2 3 4 5 charges, so I will take it as Q1 plus Q2 plus Q3
प्लस Q4 प्लस Q5 है, सबको तो ऐड करना ही। अभी Q1 जो है वो प्लस है तो इट विल बी प्लस Q होगा, राइट। एंड Q2 जो है इट इज माइनस है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी प्लस, इन ब्रैकेट इट इज माइनस 2Q है, एंड 3Q तो प्लस ही है तो प्लस 3Q होगा, एंड Q3 जो है इट इज गोइंग टू बी 5Q है, सॉरी ये Q3 इट इज 3Q, एंड Q4 का वैल्यू 5Q है, तो ये भी प्लस है तो कुछ टेंशन नहीं। बट सेंटर में वाला Q5 है, बट वो माइनस है तो आपको माइनस लेना है, ये याद रखना। मतलब प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम Q, 3Q एंड 5Q, so it will become 8 plus 9, 9Q, and this is minus minus, so ultimately a minus 3Q 3Q, होगा, minus 3Q. minus will 7, become minus 6Q. 6Q. 6Q, right? So this is how we will calculate, right? आपको मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है तो आपको टोटल जो चार्ज है उसका अल्जेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा। अल्जेब्रिक एडिशन मतलब प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बच्चे दिस प्रॉपर्टी सबको समझा? तो इसका मतलब Yes. चार्ज, Yes. can I conclude the total charge on any body या object can be positive? बच्चे पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है टोटल चार्ज, राइट? तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड इट कैन बी व्हाट, जीरो आल्सो। आई neutral. होप यू आर क्लियर। Zero. मतलब नेट जीरो भी हो सकता है, बराबर है? Yes, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो आल्सो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बच्चे ये समझ में आया तो इसको भी कंप्लीट कर लो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? Done, sir. ओके सर वो चार्जेस कैसे मालूम पड़ेगा? Q1, Q2 क्वेश्चन में दिया तो मैंने रहेगा। अज्यूम किया है। हाँ, क्वेश्चन में मतलब ऐसा दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक Yes. प्रोटॉन है, राइट? तो इधर तो मैं Q को एक रैंडम वैल्यू लेके ए किया है मैंने, Yes. ठीक है? मतलब उधर Q ही होना जरूरी नहीं है, दे कैन हैव इलेक्ट्रॉन आल्सो। मतलब एक जगह Yes. एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे जगह दो इलेक्ट्रॉन है, और एक जगह दो प्रोटॉन है, लाइक दैट। देन आपको उसको जैसा दिए उसके हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। Yes. फाइन, देन आई होप सबने कंप्लीट yes, किया है, Yes. 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 ठीक है? सो वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन। तो फोर्थ वन मेरे को लगता है आपने नहीं सुना होगा। सो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने शायद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी डेफिनेटली पढ़ा होगा। नहीं सर। yes, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा ना बच्चा? No sir. एनर्जी मूव्स, अच्छा Quantization नहीं पता है energy आपने? moves in packages.
Exactly. Energy moves Yes. moves in packets, and that packets of energy is called as Photon. quanta. Yes. Photon, quanta. ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना बच्चा? Yes. Yes, Yes. yes, sir, Yes. पढ़ा है. हाँ हाँ, वैसा ही है, पर थोड़ा डिफरेंस है इसमें, राइट? So when it comes to quantization सर स्क्रीन of ब्लर है. सब ब्लर सब हाँ और हाँ फिक्स हो देखेंगे, गया. सब बराबर है। जस्ट अ सेकंड देखेंगे, चलो आई थिंक अभी बराबर हो गया है वो। Yes. तो नेट में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपका जगह फ्लक्चुएशन होता है तो ब्लर दिखता होगा, बट बाद में ठीक हो जाएगा थोड़ा टाइम के बाद। सो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद करो बच्चा, व्हेन इट कम्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, आपने ऐसा पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक आई मीन एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred from one form to another form. ऐसा कुछ पढ़ा है Yes. आपने? Yes. Yes. राइट, ऐसा कुछ पढ़ा है, राइट? Yes. हाँ, अभी ये जो क्वांटाइजेशन, वो जो मैंने अभी बताया एनर्जी का, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। मतलब एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another form, that is conservation of energy है, ठीक है? अभी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? हम लोग ये बोला था कि एनर्जी हमेशा पैकेट्स में मूव होता है या ट्रांसफर होता है, और वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। Quanta. हाँ, अभी इधर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यू विल कंसिडर ए ग्लास रॉड। बच्चा एकदम ध्यान से सुनो आप। सो यू गॉट अ ग्लास रॉड जो न्यूट्रल है, right? And now you have got a silk cloth. So you have got silk cloth. वो भी न्यूट्रल है, क्योंकि सिस्टम में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, तो अल्टीमेटली चार्ज तो न्यूट्रल बनेगा दोनों को ऊपर। अभी हम लोग क्या करेंगे? ग्लास रॉड को स्लोली सिल्क क्लोथ से रब करेंगे, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो ग्लास रॉड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लोथ पे चला गया, वन इलेक्ट्रॉन। चलो मैंने इधर वन मेंशन कर रहा हूं, सो इफ आई एम राइटिंग वन हियर, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका मतलब इधर नेगेटिव चार्ज तो पक्का आया है, एंड इधर चार्ज आया है Positive. राइट। अभी कोई पूछेगा बच्चे ये सिल्क क्लोथ का चार्ज क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना बच्चे, उसको हम लोग ई लिखते हैं। अभी वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और वो नेगेटिव है, तो विल राइट इट एज माइनस ई। क्या लिखते हैं बच्चा? माइनस ई। माइनस ए। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है एंड उसका वैल्यू होता है ई, राइट। अभी कोई पूछेगा सर ग्लास रॉड का चार्ज क्या है, तो आप बोलेंगे सर इट इज प्लस ई। Plus E. क्या बोलेंगे बच्चा? प्लस ई, क्योंकि प्रोटॉन का भी चार्ज मैग्नीट्यूड में ई होता है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज मैग्नीट्यूड में ई होता है, बट काली है नेचर, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है एंड प्रोटॉन का पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन है तो आप प्लस लिखेंगे एंड इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लिखेंगे। इतना समझा बच्चा? Yes. Yes. ठीक है। अभी अज्यूम करो मैंने थोड़ा जोर से रब किया तो दो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आप बोलेंगे सिल्क क्लोथ के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, एंड कोई पूछेगा सर व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क क्लोथ, तो मैं बोलूंगा कि इट इज -2e है। मानते हो बच्चा? -2e है। Yes. 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 हाँ, तो टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन ग्लास रॉड? Plus 2E. Plus 2e. देयर इज नो कंफ्यूजन, इट इज +2e, राइट। अभी मैं और जोर से रब किया तो अज्यूम कर लो कि मेरा इधर 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन दिस इज -10e and this is Plus +10e। 10e. वेरी गुड। तो अभी मैंने एकदम जोर से रब किया तो अज्यूम करो इलेक्ट्रॉन चला गया n, तो n इलेक्ट्रॉन चला गया, तो n कैन बी एनी वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, एनी वैल्यू, राइट। तो n इलेक्ट्रॉन्स चला गया, तो आपका आंसर ये होगा सर सिल्क क्लोथ में जो चार्ज है, सो इट इज गोइंग टू Minus बी NE. Minus NE. वेरी गुड। सो ग्लास रॉड का जो Plus चार्ज है इट इज NC. गोइंग टू Plus बी NE. And E. Plus NA.
So can I conclude, if Q is the charge on any conductor, it will be equal to minus या plus, कौन सा भी हो सकता है, so it is plus NE. या minus NE हो सकता है, Yes. यही हो सकता है ना बच्चे, क्योंकि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 एनी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्लस से तो प्रोटॉन है, बट हमेशा चार्ज यही फॉर्म में रहता है, प्लस माइनस एनी का फॉर्म में रहता है। यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ, इसको ही हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसा एनर्जी पैकेट्स में जाता है ना बच्चा, वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का टर्म्स में जाता है। मतलब ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ, एक तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, एक तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होगा और आधा इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ का पास रहेगा और आधा इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड का पास। ऐसा नहीं होता है। एक तो चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है। इट कैन नॉट बी E/2। E/2 मतलब स्प्लिट हो गया। E/4 भी नहीं हो सकता है, 0.1 E भी नहीं हो सकता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। क्या होगा बच्चा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। Of E. इसको ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? क्वांटाइजेशन। Quantization. जैसा एनर्जी पैकेट्स में जाता है, चार्ज अल्टीमेटली एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का फॉर्म में जाता है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन कभी स्प्लिट नहीं होगा, जाएगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। दो ही ऑप्शन है उसके पास, एक तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, सब चलेगा। सो दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, दैट इज E। मतलब वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E होगा, राइट? मतलब मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस NE है। नो डाउट इधर N जो है इंटीजर होगा, वेयर N is an integer which will take the value 1 2 3 4 like that, right? And Q क्या होगा बच्चा? Q is charge on the body, and E is going to be magnitude of charge on electron और प्रोटॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा। एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच? Yes. 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 मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, एकदम सिंपल है। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E। दैट्स इट। यही क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक, ये क्वांटाइजेशन यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंप्लीट जाएगा, स्प्लिट होके एक इधर एक उधर ऐसा नहीं रहेगा, एक तो जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, राइट? सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। बच्चे कंप्लीट कर लो।
डन सर। Yes, sir. Okay. हो गया सबका? Yes. Yes, Yes. sir. यस। ठीक है. You're done with fourth property. Now the fifth one. ये भी अभी डिस्कस किया है, that is conservation of electric charge. Conservation of electric charge. So a conservation of electric charge और conservation of energy, you know, mostly same ही है. But इधर क्या होगा? Suppose एक system है, उसमें जितना चार्ज पहला रहेगा उतना चार्ज बाद में भी रहेगा. मतलब फॉर एग्जांपल आपने शायद न्यूक्लियर रिएक्शंस देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में. मैं न्यूक्लियर Yes. फिजन का बात कर Yes. रहा हूँ. यस। तो यूरेनियम 235 92 when it is bombarded with neutron, that is N10 है, तभी क्या करेगा ये स्प्लिट होके आपको बेरियम देगा, that is 14456 plus krypton, that is 8936 plus 3 और न्यूट्रॉन मिलेगा आपको, that is 310 प्लस एक थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, that is 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा. राइट. वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर, मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होता है, राइट, तो इसमें ये एनर्जी हम लोग यूज करते हैं. तो आपको ये एलिमेंट मिल जाता है. तो अभी हम लोग इधर ध्यान से देखेंगे व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शन का बात करूंगा, तो आपको ध्यान ये देना है. तो इसमें पहला ये जो 92 है, तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहला कितना था बच्चा? 92 था. जब आप ये 56 और 36 को ऐड करेंगे यू विल गेट 92 ओनली. इसका मतलब चार्ज रिएक्शंस का पहले कितना था उतना ही रिएक्शन का बाद रहेगा. इसका मतलब चार्ज ना प्रोड्यूस हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है. राइट. कल वो क्या हो रहा है, चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे जा रहा है. अभी ये एक बॉडी था, अभी दो बॉडी बन गया, तो अभी स्प्लिट हो गया. राइट. मतलब चार्ज क्या होगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता है, बट बच्चा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बन सकता है. यू कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यू कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. राइट. ये सब पॉसिबल है. बट आप चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन नहीं कर सकते हो, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हो, बट आप इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे डेफिनेटली लेके जा सकते हो. राइट. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है? चार्ज को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट आप एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे लेके जा सकते हैं. राइट. सो दिस इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक, आई मीन एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another form. But for a change आपको बोलना पड़ेगा it can be transferred from one body to another body. Right. सपोज ए न्यूक्लियर रिएक्टर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहला था उतना ही चार्ज बाद में होगा. सो आई कैन से इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा. आई रिपीट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. राइट. तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर.
तो आप चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हो, बट आप एक जगह से दूसरा जगह डेफिनेटली ट्रांसफर कर सकते हो, राइट? सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड मतलब उधर मास और एनर्जी ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मास और एनर्जी ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, सो इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। इज इट वेरी क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? यस सर। आप Yes. सपोज एक बंद रूम में आप है तो आप बोलेंगे ना कि आई एम आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, Yes. Yes. राइट? Yes. हाँ, तो वैसे ही जब मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो सिस्टम का अंदर बाहर का एनर्जी अंदर नहीं जा सकता है और अंदर का एनर्जी बाहर नहीं जा सकता है, अंदर का मास बाहर नहीं जा सकता है, एज वेल एज बाहर का मास अंदर नहीं आ सकता। सो अल्टीमेटली अंदर जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor Nor be be destroyed. destroyed, but it can be transferred from one body to another body। एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, राइट? ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अदरवाइज आप ये कर सकते हो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड system, the total number of charge will always remain constant, will always remains constant, same, that's it। यही होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप सबको समझ में आए बच्चा। आप चार्ज को डिस्ट्रॉय Yes. नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप खाली एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे लेके जाए। सर जैसा कि आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, बराबर है, आपने चार्ज को प्रोड्यूस किया क्या? नहीं। डिस्ट्रॉय किया क्या? नहीं। बस आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? आपने ग्लास रॉड पे सिल्क क्लॉथ में डाल दिया, राइट? सो खाली चार्ज ट्रांसफर हो गया, राइट? Yes. Yes. ओके, कंप्लीट कर लो बच्चा। सो यू आर डन विद ऑल द 5 प्रॉपर्टीज। तो ये कंप्लीट करो पहला एग्जांपल रिएक्शन। लिखने का है। हाँ लिखो बच्चा, लिखो। सर यस। सर यूरेनियम के बाजू में क्या एन मतलब क्या डिनोट एन मतलब न्यूट्रॉन है बच्चा, न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है। आपको बम्बार्ड करना पड़ता है यूरेनियम का ऊपर। ओके एन फॉर न्यूट्रॉन है, एन फॉर न्यूट्रॉन है बच्चा, न्यूट्रॉन। ये भी एन न्यूट्रॉन है।
Okay. Fine. So मैं रब कर रहा हूँ. I hope it is done. Yes. 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 Fine. So the questions हम लोग solve करेंगे. So I'll take it as question number 1. So the question is, how many electrons is removed are removed from a coin या metal coin from a coin to have a charge of 10 raised to minus 7 coulomb. तो ये मेरा क्वेश्चन है. तो इसका मतलब मतलब एक कॉइन पे ऑब्वियसली पहला चार्ज तो न्यूट्रल होगा, तो हम लोग उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उसको ऊपर चार्ज आता है 10 raised to minus 7 coulomb. तो ये सॉल्व कर सकते हो आपको. How many electrons are removed from a coin to have a charge of 10 raised to minus 7 coulomb? This is 10 raised to minus 7 coulomb. Right? तो आपको खाली E का वैल्यू दिया है. E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is going to be the value of E. This is given. बताइए कैसा सॉल्व करेंगे. How many electrons are removed from a coin to have a charge of 10 raised to minus 7 coulomb? देख ऐसा लेके जाएगा तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. तो अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. Q equal to NE. E equals Q is to equal NE, to sir, NE. formula. Yes. हाँ, देखो बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ. देखो एक कॉइन है. दिस इज कॉइन. ठीक है. अब ये कॉइन 10 न्यूट्रल है. raised to 12 divided by 1.6. हाँ, तो इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसमें एक प्रोटॉन बचेगा. So it is going to have a charge of plus 6. एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. तो वैसा आपने n इलेक्ट्रॉन्स निकाला. कितना n इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला, तो इसमें चार्ज आता है प्लस n. ये तो आपको पता ही है बच्चा, क्योंकि इधर n इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका अंदर यू गोइंग टू हैव n प्रोटॉन्स. तो आप जितना इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतना प्रोटॉन्स इसमें रहेगा. तो अल्टीमेटली n प्रोटॉन्स का चार्ज का वजह से 10 raised to minus 7 कूलम आना चाहिए. तो आपका फॉर्मूला आएगा Q is equal to of course plus NE. ये n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी हो सकता है या n प्रोटॉन्स इसमें अवेलेबल वो भी हो सकता है. राइट. तो इधर आपको n चाहिए तो n is equal to it is Q upon E. Q upon E. Q is 10 raised to 10 minus raised to 7. minus 7. E का वैल्यू तो मैंने दिया ही है. दिस इज 1.6 into 10 raised to 10 raised to minus 19. minus 19. तो reciprocal of 1.6 is 0.625 है. 0.625. याद रखना. Yes. 1 upon 1.6 का वैल्यू, और ये ऊपर आएगा तो प्लस होगा. तो इट इज into 10 raised to कितना होगा बच्चा. 19 से 7 जाएगा तो 12. 12. 12. तो आप शिफ्ट करेंगे तो इट इज 6.25 into 10 raised to 11 होगा. तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा ताकि उसको ऊपर चार्ज 10 raised to minus 7 आएगा. So you have to remove 6.25 into 10 raised to 11 electrons. Then
the charge on the coin is going to be 10 raised to minus 7 coulomb. I hope अभी तो सबको समझ में आया. Yes. Yes. यस सर. सर उधर प्लस एन क्यों है? बच्चा हम लोग प्लस है नहीं इसके लिए लिखो क्योंकि कॉइन का अंदर चार्ज पॉजिटिव है, इसके लिए प्लस लिया. और मेरा ये n प्रोटॉन का भी नंबर है और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर है ना, तो n इज सेम. तो अल्टीमेटली मैं Yes. ये n फाइंड आउट करूंगा तो बोल सकता हूं कि मैं उतना ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, उसके लिए उतना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कॉइन पे आया है. सर माइनस भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते. यू कैन टेक माइनस आल्सो. माइनस मतलब आप n का ये इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हो, Electrons का बात. प्लस लिखा तो मैंने प्रोटॉन्स का बात कर लिया. राइट ना. यस यस. सर Yes. पर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना तो प्लस आएगा. इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस रहेगा. पॉजिटिव रहेगा. तो यस. हाँ तो ई का भी चार्ज क्या होगा, प्लस होगा. जब आप मैं इलेक्ट्रॉन का बात करूंगा तो इधर आपको माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने वाला है ना. यस. बच्चा क्लियर है, एकदम क्लियर है. Yes. यस सर. Yes. ठीक, लिख लिया आपने, कंप्लीट कर दिया. Yes. यस सर. Yes. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं. Fine then. So when it comes to the properties, the first property is like charges. Like charges, they repel each other. Suppose charge positive है तो आपस में रिपल होता है. चार्ज नेगेटिव है ऑब्वियसली रिपल होता है लाइक चार्ज. बट चार्ज प्लस है दूसरा माइनस है तो अल्टीमेटली ये Attract. Attract. अट्रैक्ट है. तो इधर रिपल्शन है, इधर रिपल्शन है, इधर अट्रैक्शन है. यस और नो. यस. Yes. मतलब यस. ये जो चार्ज का बीच में एक फोर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है जिसके लिए लाइक चार्जेस रिपल होता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होता है. I hope, बच्चा किसी का तो माइक ऑन है सो देयर इज सो मच डिस्टर्बेंस. वैष्णवी पुट योर माइक ऑफ बच्चा. तो जिसका भी माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लो. फाइन. बच्चा इधर लाइक चार्जेस है, रिपल हो रहे हैं, इसका मतलब उनका बीच में डेफिनेटली एक फोर्स है जिसकी वजह से वो रिपल हो रहा है. एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है सो डेफिनेटली उनका बीच में भी फोर्स है जिसके लिए वो अट्रैक्ट करता है. मतलब इतना तो पक्का है चार्ज का बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट होता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. एंड ये जो प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 उसको एकदम सीरियसली एक साइंटिस्ट ने लिया जिसका नाम कुलम है. राइट. एंड दैट साइंटिस्ट he started doing experiments to find the force, the value of force between the two charges. मैं फिर से बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम कुलम, उसने ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताया उसको एकदम सीरियसली लिया. उसने बोला कि लाइक चार्जेस रिपल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका बीच में फोर्स होगा एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका बीच में भी फोर्स होगा. तो उसने बोला कि फोर्स है तो हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है. तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको हम लोग टॉर्शन बैलेंस बोलते हैं. आई रिपीट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड टॉर्शन बैलेंस. And he started doing experiment by taking different value of charge, different distance, then different medium. Then he found an expression. Finally, उसको एक expression मिला. Then he found that expression न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेट करता है. क्योंकि न्यूटन ने ये बोला है, सपोज सिस्टम में दो बॉडी है विद मास m1 एंड m2, आपस में डिस्टेंस r है. देन ये दोनों बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेगा विद ए फोर्स m f, दैट इज न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स. m1 into m1 और ये upon फोर्स r square. प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा.
and inversely proportional to square of the Radius. distance The over. distance. Then you can write F is equal to G M1 M1 M2 M2 upon upon R R square. square, where G is going to be the gravitational gravitational constant. 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 तो ये इक्वेशन न्यूटन को मिला था। तो अभी इन दोनों को जो फोर्स है, इन जब आप कैलकुलेट करने जाते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट सपोज ये दोनों चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज है, तो जब आप लोग फोर्स कैलकुलेट करने जाते हैं तो आपको फोर्स अलग ही मिल रहा था, क्योंकि इनका बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ये वैल्यू आना चाहिए था। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, तो इन दोनों का जो फोर्स है ये नहीं मिल रहा था, अलग मिल रहा था, राइट। तो उसने क्या किया, इसका मास को कंसिडर नहीं किया, ही कंसिडर्ड द चार्ज। इसका भी मास को कंसिडर नहीं किया, he considered the charge, right? Then he found that the equation is, that is F is directly proportional to Q1 and Q2 and it is inversely proportional to square of the distance. I'm talking about बच्चा electrostatic force, ये तो gravitational का हो गया। Then he got F is equal to, yeah, F is directly proportional to, I can make it square and it is equal to K, क्योंकि ये gravitational constant है, तो obviously electrostatic का constant आएगा, that is Q1 Q2 upon R square। ये equation उसको मिल गया, and ये equation and equation almost similar है, R square तो same ही है, G का बदले में K आया है, M1 and M2 का बदले में Q1 and Q2 आया है, right? सर क्लियर हो गया? तो सर सर जी और के का वैल्यू सेम रहेगा? नहीं सेम नहीं है बच्चा, दोनों अलग होगा, वो डिस्कस करेंगे। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी का क्या वैल्यू होता है? 6.67 into 10 raised to minus माइनस 11. 11 वेरी गुड, it is 6.67 into 10 raised to minus 11। यूनिट क्या होगा बच्चा? यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एक्सलेंट, राइट। अभी ये जो k है, ऑब्वियसली k और g का वैल्यू तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट फैक्टर को हम लोग ये कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल को डील करता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक को डील करता है, बराबर ना। तभी ये कुलम्स फोर्स, कुलम्स लॉ जो इक्वेशन मिला है हम लोग को, उसमें क्या किया, एक लॉ बनाया, एंड वो लॉ जो है, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। जैसा ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट कुलम्स लॉ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। आई रिपीट, जैसा ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक लॉ था, वैसे ये जो कुलम्स लॉ है, इट इज गोइंग टू बी द बेसिक लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, राइट। तो उसने क्या बोला, ये जो कुलम्स लॉ का हिसाब से दो चार्ज का बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। आपको दोनों चार्ज का प्रोडक्ट लेना है, बट व्हाइल टेकिंग प्रोडक्ट यू हैव टू कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओनली। माइनस चार्ज है फिर भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, राइट। एंड इट ऑब्वियस इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस ये जो फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। एंड थर्ड ये है, ये जो फोर्स कौन सा भी डायरेक्शन में एक्ट नहीं होता है, इट एक्ट्स अलोंग ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। मतलब वो वही लाइन में एक्ट होगा जिधर दो चार्जेस को पास होता है वो लाइन, राइट। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर यू आर Then ये जो फोर्स, सर आप म्यूट पे चले गए शायद। No, sir. सो म्यूट तो नहीं है, इनकेस नेट का इश्यू है तो आपको आवाज नहीं आया होगा, तो फिर से ध्यान से सुनो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, याद रखना एट रेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर चार्ज मूव नहीं हो सकते, क्यों, बिकॉज यू आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस
product of magnitude of 2 point charges. And second, it is inversely proportional to square of the distance between them. ये भी पता है आपको. And third, it acts along a line. Suppose आप एक line बनाओ, इधर एक चार्ज है Q1, इधर एक चार्ज है Q2. तो अभी अट्रैक्शन है तो फोर्स ऐसा एक्ट होगा लाइक दिस. तो मतलब ये ए लाइन में एक्ट हो रहा है. रिपल्शन है तो फोर्स ऐसा एक्ट होगा. तो अगेन इट इज इन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. मतलब फोर्स ऐसा और ऐसा किधर भी नहीं हो सकता है, वो वही लाइन में होगा जो दो चार्जेस को पास करता है. राइट. सर तो सर वो दो चार्ज कितना भी दूर रह सकते हैं ना? हाँ रह सकता है. हाँ. राइट. अभी फोर्स दूर होगा तो क्या होगा, फोर्स वीक होगा. राइट. फोर्स वीक होगा तो क्या होगा, बॉडी विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स डोमिनेंट रहने वाला है, डोमिनेंट नहीं रहने वाला है. राइट. सो बच्चों समझ में आया, कितना भी दूर होने दो उनका डायरेक्शन वही होगा. सो इट विल नॉट चेंज. तो आप ये मत सोचो कि नजदीक है तो ऐसा होगा, दूर किया तो कुछ अलग डायरेक्शन आएगा. नहीं, हमेशा ये जो फोर्स है वो वही लाइन में रहेगा जो दोनों चार्जेस से पास होता है. राइट. सो इज इट वेरी क्लियर? यस. Yes. ओके. अब ये मीडियम को मैंने चेंज किया. सपोज ये वाटर में है तो फोर्स F है. इसको मैंने दूसरा मीडियम में रखा, मे बी एयर में डाल दिया इसको, तो फोर्स F डैश होगा. मतलब ये फोर्स हर एक मीडियम में डिफरेंट होगा, ये भी हमेशा याद रखना. सो ये जो फोर्स मीडियम टू मीडियम चेंज होता है. राइट. सो वी गेट 4 पॉइंट्स. एक प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा, and it acts along a line joining 2 point charges. And fourth यही है, it depends on the medium where the charges are placed. तो इसको लिख लेते हैं, then इसका जो इक्वेशन है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिराइव करेंगे. राइट. सो Coulomb's law, तो आप मेरे साथ ही लिख सकते हो, there is no harm. The electrostatic force of attraction. एंड आपको पता है ग्रेविटी में खाली अट्रैक्शन ही आता है, इधर दोनों आएगा, और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट. मैंने जैसा बोला कि ये इंपॉर्टेंट है. इज फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of two charges second, inversely proportional to square of distance between them. And third, it acts along a straight line joining two charges. Right. And fourth, it depends on medium where the charges are placed. एकदम सिंपल है. तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड रहेगा. एक लाइन पे एक्ट होगा जो दोनों चार्जेस में पास होता है. इट एक्ट्स अलोंग ए लाइन या स्ट्रेट लाइन पास ज्वाइनिंग टू चार्जेस, and it is inversely proportional to square of the distance between them, directly proportional to product of magnitude of two charges. ये Coulomb's law है बच्चा. And it is very similar to Newton gravitational law है. फर्क इतना ही है, ग्रेविटेशनल लॉ है, अट्रैक्शन ही होता है, इधर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगा. सर थोड़ा जूम करो ना, दिखने रहा है. अच्छा ठीक है. ओके.
Is it okay now? Yes, sir. Yes. सर सेकंड पॉइंट क्या है? Second point, Inverse. inversely proportional to square of the distance between them. Inversely proportional to square of the distance between them. थैंक यू सर. Third point, it acts along a straight line joining two charges. Fourth point, it depends. Medium It where the depends charges are placed. on medium where the charges are placed. It depends on the medium where the charges are placed. Done. Done, sir. Done. So if it is done, so don't you think this law is very simple and आपको कुछ मतलब Yes. आराम से Yes, याद आ sir, yes. जाएगा कुछ मतलब Yes. बाहर करने का भी Yes. जरूरत नहीं है. Yes. इसका जो इक्वेशन है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग. तो आपको इधर तक नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आना है और कूलम्स लॉ तो सबको आना चाहिए. मैं किसी को भी पूछूंगा नेक्स्ट टाइम नाम पूछ के. Yes, sir. ठीक है. So we will stop now. So I will ask madam to end the lecture.